اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا، میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کھاتے ہو؟ دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا۔ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کو آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے؟ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے؟ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے، پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا؟ ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو فرماتے جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا۔ تو دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب
तबलीग के शाइस्ता और पसंदीदा होने का बयान किया गया। जब आप तबलीग करें तो आपके जुमले बड़े शुस्ता होने चाहिए, साफ सुथरी बात आप करें। कुरान मजीद ने कहा ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो खूबसूरत नसीहत के साथ, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज में। अब तो अल्लाह ताला माफ करे, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है। यानी अब मौलवी के नाम के नीचे लिखा है फनी मौलवी, ये मौलवी के नाम के नीचे लिखा है और उसको देखने वालों की तादाद लाखों में होती है, कहते हैं ये मौलवी फनी है। भाई आप थोड़ा समझें, मस्जिद में तो जो आदमी ज्यादा हंसता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई बात ऐसी आ जाती थी तो अल्लाह के नबी भी मस्जिद में मुस्कुराते थे, हुजूर भी मुस्कुराते थे, सहाबा भी मुस्कुराते थे। और सहाबा कहते हैं हुजूर जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता था, मस्जिद नबी की दीवारें भी चमक उठती थी। लेकिन ये मतलब मौलवी को इसलिए बुलाना कि वो लतीफे सुनाएगा, वो तंज़ो मिज़ाह की बात करेगा। तो आपने क्या फर्क रखा मस्जिद में, अल्लाह के घर में और दीगर जगहों पे? आप जरा समझिए इस बात कि वही बात जो कुरान ने कही कि लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है, माअज़ल्लाह लोगों ने खेल तमाशा समझ लिया है। तो किस तरफ मतलब कौम लग गई है और बड़ा बड़ा उरूज है और बड़ी बड़ी बातें हैं। बीच में है क्या कि लतीफे सुनाए जा रहे हैं और दास्तान सराई हो रही है और कहानियां हो रही, और कौम है कि वो उस पर लगी हुई अच्छी नसीहत, खूबसूरत जुमले। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हैं हुजूर जन्नत का जिक्र करते थे तो यूं लगता था हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। हुजूर दोज़ख की बात करते तो हमारे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते, और हुजूर क़यामत का जिक्र करते तो यूं लगता कि निकल के बाहर जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। ये अंदाज था हुजूर का बात करने का। तो लिहाजा बड़ी शुस्ता, बड़ी साफ सुथरी और बड़ी मीठी और बड़ी ठंडी बात करें। दीन की बात जब आप करें तो फिर उसमें हुस्न छलके। आम आदमी और दीनदार आदमी के लबो लहजे में फर्क होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से एक सिफ्त नबी उम्मी होना भी है। उम्मी का माना आला हज़रत ने फरमाया बेपढ़ा हुआ, जिसने दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो। यानी आपने रस्मी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं सीखा। इसमें भी अल्लाह ताला की बेपनाह हिकमत है कि हुजूर ने दुनिया में आके पढ़ना लिखना नहीं सीखा। आयत नंबर 48 में फरमाया कि आप नुज़ूल कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। ये बड़ी अनोखी बात का जरा समझिए, ये भी मेरे नबी की शान है। हुजूर ने कुरान के नाजिल होने से पहले रब फरमाता है कोई किताब पढ़ी ही नहीं, कोई किताब हुजूर ने पढ़ी नहीं। लेकिन हुजूर तौरात की बातें भी बताते थे, इंजील और ज़बूर की बातें भी बताते थे, वो नहीं पढ़ा हुजूर ने। और ना ही नबी पाक अलैहिस्सलाम दाएं हाथ से लिखते थे, लेकिन हुजूर का लिखना बहरहाल साबित है। बाद में नबी पाक का बतौर मोजज़ा लिखना साबित है, अहादीस मुबारका से साबित है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कोई किताब पढ़ी, ना दुनिया में हुजूर किसी के शागिर्द हुए। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान फरमाता है मैंने खुद उन्हें कुरान सिखाया है। हुजूर ने अपने रब से सीखा, डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है मेरे नबी करीम। और या अल्लाह क्या सिखाया, क्या सीखा? तो फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, महबूब जो नहीं जानते थे रब ने सारा ही सिखा दिया है। लोग पूछते हैं आपके उस्ताद का नाम क्या है? लेकिन जितना बड़ा उस्ताद हो शागिर्द का इल्म भी उतना बड़ा होता है। तो नबी पाक ने अल्लाह से सीखा है। अब आप अंदाजा कर लें कि अल्लाह ने क्या क्या इल्म मेरे रसूल को सिखाया है। तो नबी उम्मी का माना है बेपढ़ा हुआ। आयत नंबर 50 से कुफार के मुझे की फरमाइश के जवाब में फरमाया कि कुरान मजीद से बढ़कर मुझसा और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या मुझसा मांगते हो? ये बहुत बड़ा मुझसा है। आज़ाब के मुतालबे पे फरमाया कि इसका एक वक्त मुकर्रर है, वो वक्त पे आएगा, किसी के कहने पर नहीं आएगा। आयत नंबर 56 में मोमिन बंदों को फरमाया जा रहा है कि जिस सर जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल हो तो अल्लाह ताला की इबादत की खातिर वहाँ से ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत कर जाओ जहाँ तुम बेखौफ व खतर अपने रब की बंदगी कर सको। हिजरत करने का हुक्म दे दिया अगर कहीं खुल के इबादत करने का मौका मुयस्सर ना हो। मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खिता हो जहाँ खुल कर इबादत करने का मौका मुयस्सर। मैंने बरतानिया में एक मदीना
مسجد देखी, बहुत बड़ी वसी मस्जिद. तो मैंने एक जुमा वहाँ पढ़ाया. तो जुमे के बाद हम नमाजियों के बीच बैठे. मैंने कहा आपने बड़ी शानदार मस्जिद बनाई. तो वो कहने लगे कि यहाँ की हुकूमत ने हमारे साथ ताउन किया. आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के. वो कहने लगे जब हम मस्जिद तामीर कर रहे थे तो यहाँ से पीछे से एक रोड गुजरता था. तो हमारी मस्जिद में आड़े आता था. तो हमने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि ये रोड आ रहा है. तो कहते मस्जिद की खातिर गवर्नमेंट ने रोड बंद करके रोड ऊपर से गुजार दिया है. अब तो इबादत करने की तो कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त यह है कि इबादत करने वाले भी तो होने चाहिए ना. इबादत करने की कोई परेशानी और न भी हो. अल्लाह के महबूब के लिए अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है. हुजूर फरमाते हैं मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन मस्जिद बन गई. जहां सजदा करोगे रब कबूल कर लेगा, पर शर्त यह है कि बंदा सजदा करे. फरमाया और कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, इनको अल्लाह रिस्क देता है. और तुमको भी यानी इंसान कितनी ही मंसूबा बंदी क्यों ना करे, असबाब का इख्तियार करना बजा है, लेकिन राज़िक हकीकी तौर पर सिर्फ अल्लाह ताला ही है. जानवरों को कभी देखा आपने कि उन्होंने गठड़ियां बांध के अपना रिस्क बांधा हो? तो अल्लाह फरमाते हैं जिनका कोई सबब नहीं, जब मैं उन्हें देता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं दूंगा. रिस्क देने वाला अल्लाह है. फिर आगे जाके आज नंबर 64 में फरमाया कि दुनियावी जिंदगी के खेल और तमाशा होने और उखरवी जिंदगी में असल जिंदगी ही तुम्हारे लिए वो है जो आखिरत की जिंदगी है. दुनियावी जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, खेल है. मतलब जब कोई दुनिया से चला जाता है तो फिर लोग क्या कहते हैं, कोई क्या कर सकता है, कर सकता है कुछ. ये तो एक खेल और तमाशा सा है. मतलब मैंने बच्चे पाले तो फिर बाद में मेरे बच्चों ने बच्चे पालने शुरू कर दिए, फिर उनके बच्चों ने बच्चे. और बहुत बड़ा लफ्ज है जनाब ये हमारे पास, बच्चों के लिए कर रहा हूँ जी. और अब्बा जी की उम्र 85 साल हो जाती है तो बच्चे कहते हैं अब्बा एक दुकान ही दे दे. कहते ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देनी, वो जो ਤੁਹਾਡੇ लिए कमाया सारी उम्र. तो मैं कहता हूँ ये जो बच्चों का बहाना है ना, ये बहाना है. बैंक बैलेंस अपने नाम का, मकान अपने नाम, गाड़ी, और रोज कहता क्या है, और भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहाना है. बच्चों के लिए है बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों के काम तो आएगा ना हमारे जाने के बाद. आज तो मालिक और वारिस हम ही है ना, इसलिए थोड़ा निकले इस खेल तमाशे से, उस आखिरत की भी फिक्र करें. इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज पढ़ रहे थे तो आग लग गई. लोग बुझाते रहे, इमाम साहब नमाज पढ़ते रहे. नमाज के बाद लोगों ने कहा हुजूर हम आग बुझा रहे थे, आपने तवज्जो ही नहीं की. फरमाया तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं कयामत की बुझा रहा था, मैं दोज़ख की आग बुझा रहा था. उधर भी थोड़ी तवज्जो करें. अल्लाह तौफीक. सदका जारिया हासिल करने के